Can you share your experience with my class? Okay, let us start the class, and I hope you have this PDF which you can use later. So there is voltage divider biasing. Yeah, this is for JFET. There are certain applications also. Yeah, this is the voltage divider biasing, and if I'm able to find it out for you. Okay, let us see this. This is the feedback biasing. This is enhancement type MOSFET. Okay, so working is quite simple. When we do the DC analysis,
This is open circuit. This is also open circuit, right? And this IG is 0. So that's why if this IG is 0, that means drop across this. That voltage is IG into RG. That should be 0. That's why this is becoming a short circuit here. Can you see this circuit? So this circuit is being modified into this for the DC analysis. Right? Just a second. I have to take the call. So the circuit is being modified into this. Okay. So can you find out this VDS? This VDS means one terminal is at drain. अगर मल्टीमीटर का देखेंगे तो एक टर्मिनल यहाँ पे, एक यहाँ पे, right? So one is at ground, right? So this is VDD Yes, minus IDRD. Am I right? Because Yes, मान sir. लो यहाँ 10 वोल्ट है तो इसके क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा. मान लो 1K है और ये 5 मिली है. So this is 10 minus 5 milli into 1K. 10 minus 5 means 5 volts, like this, right? So voltage drop always occurs from the batteries actually. बैटरी है, you should think in this way कि इस बैटरी, ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो यहाँ रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा ड्रॉप होते हैं, कैपेसिटेंस के क्रॉस हमेशा ड्रॉप होते हैं. अब जैसे IG करंट ही 0 है तो नो ड्रॉप, isn't it? Yes, sir. Here ID is there, so there will be drop across this. रेजिस्टेंस हमेशा रेजिस्ट करेगी तो वोल्टेज ड्रॉप उसके क्रॉस होगा, right? So this is how we are Yes, sir. focusing on this. So this is what its analysis actually. So you can see VD is equal to VG because D and G they are short circuit. ठीक है? And VDS is VDD minus IDRD. IDRD. And VGS is VDD minus IDRD क्योंकि वो ये भी सेम है. This point is shorter to this. तो VD क्या है? VG के बराबर रहेगा. तो GS अब इसमें S लगा दो because S is at ground. Yes, sir. VD is equal to VG, and VDS is equal to VGS because they are shorter. They are working on the same point. And this is nothing but VDD minus IDRD. That's it. Okay? Yes, sir. So, this is what we can do. ये है कि when this VGS is equal to VDD, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कि अगर हम VGS की वैल्यू को VDD दे दें, यहाँ VDD इनपुट दे दें, तो ये वैल्यू भी VDD है, राइट? Yes, sir. क्योंकि ये शॉर्ट है. अगर ये VDD है और ये VDD है, what is the current across this? So it will be 0 It should be 0 because there is no current. potential difference. Sorry, sir. No potential Difference difference. of potential. Is there? इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल में. तो करंट इज 0, राइट? Yes, sir. तो डिफरेंट सिचुएशंस लेके आ और VDS कितना आ गया? VG इसके बराबर.
So VGS is equal to VDD when ID is equal to 0 milliampere, or the other way around. So this is its Q point, because we are interested in ID and VGS. So that is how it is. तो ये डायोड की तरह काम करेगा एक तरह से, अगर if we talk about it like this. So if दोनों पॉइंट को सेम कर दो, शॉर्ट कर दो ऐसे, right? Yes, sir. So characteristics will be like diode. ठीक है, वैसे ही इसमें रहता है, इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दो तो ये डायोड की तरह characteristics होंगी इसके लिए, बीजेटी के लिए. Okay. Yes, sir. Like this. So this is diode like behavior. This is how BJT has diode, and this is MOSFET as a diode. ऐसे यूज किया जा सकता है. So there are so many things. The only thing is you have to get involved in this. Nothing else. तो जैसे यही है, इसमें भी वही है. You can find out this. You know this is the current equation for enhancement type MOSFET. एक और बड़ा interesting question है, देखो जैसे क्या ये है voltage divider biasing. So again, if we see about this IG0, तो ये voltage divider बन गया एक तरह से. So this VG is exactly same like the BJT based voltage divider. VGS is, again, this is very quite clear that V gate, we know this is V gate and this is IDRS. And VDS is, this is VDS. Okay, draw between these 2 points. So this is VDD minus IDRT. तो BJT के केस में जैसा एनालिसिस था वैसे इस केस में, right? What we try to find out here is, in case of VDD, this is this BJT, it is the operating point, and in case of this, it is the VGS and ID. In case of MOSFET or JFET. Okay, Yes, sir. they are going to determine the operating points. ये कर लोगे आप लोग, Yes, sir. है ना? So here IG is automatically 0. Why the gate current of the MOSFET is 0? Why the gate current of the MOSFET is 0? I don't know. Any of you? I don't know, sir. उसका सिंपल रीजन है, दिस इज MOSFET, है ना? MOSFET ऐसा होता है. Yes, ये कौन सा मटेरियल है? silicon dioxide. ये क्या है? मेटल. metal. Yes, sir. जब यहाँ से गेट वोल्टेज देंगे मान लो, तो करंट फ्लो करेगा. Okay. Yes, sir. What you need is, in order to flow the current, you need a Potential difference. potential difference भी चाहिए, और you need a path also. Yes, sir. इंसुलेटर है नहीं होगा. अब मान लो लकड़ी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दो आप,
यहाँ 10 नहीं। वोल्ट 5 वोल्ट करंट मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल चाहिए सर। हाँ, तो कंडक्टिंग, तो व्हाट वी हैव इज वी हैव silicon dioxide. That is inductor. That's why this Ig is 0. 0. And we are applying a VDS here. That's why current is flowing like this. तभी तो ID आता है. G कभी भी पिक्चर में नहीं आता. And same is true for JFET. उसमें क्या है? उसमें ऐसे है. ये P है, ये N है. सॉरी, और ये N है. ये ड्रेन है, ये सोर्स है. So, इस PN की अपनी एक Width. is having depletion width. ये डिप्लीशन लेयर है और ये हमेशा रिवर्स वाइज में यूज होता है. तो रिवर्स वाइज में करंट कितना होना चाहिए? Almost 0. 0. Only leakage current will flow. Yes sir. That's why the gate current is 0 in both the cases. जबकि बीजेटी के केस में ऐसा नहीं है. बीजेटी के केस में आईबी भी है, आईसी भी है ना, आईई भी है. तीनों करंट है. IE is equal to IC plus ID. I, like that. Okay. Yes sir. So JFET and MOSFET, they are having higher resistance as compared to this. That's why we prefer this. इसकी preference तभी है over the BJT. Any question regarding this? No. No, sir. But important thing is जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं खुद, तब तक समझ नहीं आएगा. Because they are not easy to understand. है ना? And they are new for you, so you have to practice them. जैसे ये question है. Can you see this question? Yes sir. Page number 8. So what is the page number? So we have to find out these voltages. VD VC. है ना? Yes sir. तो ये IG कितना होगा? 0. Yes sir. और ये ID होगा. ठीक है? ये IC भी होगा, ये IB भी होगा. यहाँ क्या है? IB प्लस IG, ऐसे होगा ना? Yes sir. फिर IG इधर चला गया, IB इधर आ गया एक तरह से. तो IG तो 0 ही है लगभग. तो this is how we have to frame. This is IC, this is IE. IE is nothing but IC plus IB. I. So this is the first thing which we have to do. This is current I1, this is current I2. अगर आप इसको वैसे देखो तो वोल्टेज डिवाइडर की तरह दिख रहा है ना. Yes sir. Yes, sir. अगर यहाँ से इस ये दो अलग अलग लूप. ऐसे कर लो, तो R1 है, R2 है, RC है, RE है, ऐसे यूज करते थे ना. Yes sir. कि बीच में एक, इसने एक के बजाय एक JFET यूज कर लिया और एक BJT यूज कर लिया. क्वेश्चन को थोड़ा और इम्प्रूव कर दिया, है ना. Yes sir. है वही चीज. अब देखो इसने फिर, इफ यू कैन सी, वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश की इसको. ठीक है, तो फिर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया, and then he is able to find out, and this ID current is तो ये जो वैल्यू है, this value
VDD into R2 divided by R1 plus R2, ऐसे निकाल लिया। ये जो करंट है, दिस करंट, ये करंट निकलेगा तभी ये वाले करंट निकल पाएंगे। तो दिस इज बेस्ड अपॉन JFIT current equation, 1 minus BGS by BP whole square and like that, IDSS। IDSS ये दिया हुआ है, BP दिया हुआ है, VGS निकालना है, this one। So if we go for this, VD निकाला हुआ है, देखो IC निकाला है। This is how they are trying to do। तो इस क्वेश्चन को करना है आपने खुद। ओके, एक और है सेम ऐसे अलग से दिया है बहुत आसान, बस वही है कि यू हैव टू डिटरमिन। जैसे इसमें भी क्या है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, इसमें भी यही है। दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो ये और ये पता होने चाहिए। तो आईडी हम निकाल सकते हैं, जैसे BGS इज माइनस IDRS, दिस वन। ओके, ID is 1 milliampere here. This is also given. So this is 1 milliampere at so this is IC, this is ID. Okay. So IE is equal to IC plus, तीनों एक ही रो में है ना। Yes, sir. So this current, if you see, and this current, they are same, क्योंकि IC is equal to IE and that is equal to ID. Okay, IB you can find out from here, यहाँ से IB निकल जाएगा। IB is nothing but IC by beta। तो IC की वैल्यू भी दी हुई है, because that is equal to ID। That is how you can conclude it, but you have to solve this। If you don't solve this, ऐसे होगा नहीं इतनी आसानी से। ओके, तो क्वेश्चन Yes, दोनों sir. करने हैं आपने, राइट। Yes, sir. Then we have some applications related to this। ये भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसा नहीं है। So this is about the MOSFET and BJT, comparison of this MOSFET and BJT biasing techniques। So the basic purpose of all this is, अब ये सारा क्यों किया आपने? If I just conclude it in the end, what is the purpose of studying this diode and this BJT, JFET And MOSFET. MOSFET? सर करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए सर हम Continuity. अकॉर्डिंग Efficiency. They are all made up of which material? Semiconductors. Semiconductors at large। जैसे ये तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है ना, तो इसमें तो 3 तरह के हैं। तो सेमीकंडक्टर, एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेमीकंडक्टर?
control the We current. allow to restrict The the flow of conductivity current control करना है. according to our needs. One of the major property is that its resistance is in between insulator and Conductor. conductors. Means it can move from one higher input resistance to lower input resistance, one resistance to the another. Okay, it can oscillate in between that. So higher resistance means, what does it mean? Low current. Current is zero, Almost zero. and here current is Higher. Highest. very high, or you can say resistance is Almost zero. zero. So R on is zero here, and R on here is infinity. Okay, R on की टर्म में बात करते हैं. So what we do is, with the help of semiconductors, we switch from On to off position. this is off, this is On. okay. This is something like short circuit type behavior, and this is open circuit type behavior. So basically what we are able to do is, we are able to use it as a switch. Okay, Yes, sir. switch means on off. Off position. On and off That's position. why so off behavior is when we operate the device in cut off, and on is like saturation. Okay, this is how we are defining it. And because of this, these devices, they are useful for which applications? Digital electronics. Digital applications. Digital applications में क्या आता है? Logic gates, NAND, NOR, AND, OR, है ना? ये सब इसी में आते हैं. ओके, डिजिटल डिवाइसेस जो भी हैं, जो भी आप सोचते हो, कंप्यूटर्स हैं, they are dependent upon this entire applications. Adder, subtractor, जितने भी mathematical. If I ask you, आप you are from computer science branch है ना? So mathematics and computer. There is a mixed branch between, है ना? Computers के भी हैं और mathematical and computing. Yes, sir. Okay, so can you tell me what is the meaning of computers? The computer is an electronic device which convert our language into mechanical language. Okay, or Sir, its actual purpose was to calculating. A programmable machine. programmable machine. One is saying calculator, और बताओ शाबाश. आपने रखी है ना ब्रांच मैथमेटिकल कंप्यूटिंग और कंप्यूटर्स. Device used to solve mathematical and logical problems. मैथमेटिकल एंड Logical problems. लॉजिकल प्रॉब्लम्स. ओके, और Electronic device for storing and processing data. electronic device for storage and all. Okay, और कोई? बड़ी मेहनत से ली होगी ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो पता भी तो होना चाहिए करेंगे क्या, इसमें है क्या कंप्यूटर. सर सिस्टम को अपने मैनेज करने के लिए प्रॉपर डिवाइस है. सिस्टम को, कौन सा सिस्टम? सर अगर कोई भी मतलब अगर हम चीज बनाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं उसमें कंप्यूटर में.
खाना बनाएंगे तो उसमें हो सकता है। नो तो मैंने डिजिटल बात की है। हाँ, तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना बेटा, यू कैन नॉट टॉक इन टर्म्स ऑफ ए लेमैन, है ना, तो टेक्निकल टर्म्स में बात करनी पड़ेगी फिर। सर, फिर ऐसे नहीं बोल सकते ना कोई भी चीज, कोई भी कुछ ऐसे। ओके, वी शुड बी प्रिसाइज सर। हाँ, क्योंकि तुम वो मतलब यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ओके, so you have to use the words like that, and if you are short of words that means you don't have proper vocabulary, so अपनी vocabulary increase करो, right? अब vocabulary increase करने का क्या तरीका है सबसे बढ़िया, कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ बुक्स सकते पढ़ हैं, के। है ना? इंग्लिश हार्ड न्यूज़पेपर पढ़ के कर सकते हैं। Reading books or using dictionary. मेहनत करो, है ना, you'll find your own ways अपने आप, ठीक है? Okay, let us talk about computers. Any other who would like to add or subtract कि हाँ कंप्यूटर ये है भाई मेरी नजर में। तो मल्टीटास्कर सर, एक बार में मल्टीटा बहुत सारे काम कर सकते हैं हम हाँ जी, कंप्यूटर। एक बार में कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर सकते हैं सर। क्या क्या काम कर सकते हैं? हाँ जी, फाइल मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी हो गया, जैसे स्कूल में कई सारे बच्चे हैं, उनका अगर आपको रजिस्टर करना है उनकी इंफॉर्मेशन को, तो सब वो वेल मैनेज के द्वारा मतलब कंप्यूटर में हो जाएगी इजीली। हम्म, अच्छा, फाइल मैनेज हो जाएगी, यस सर। और क्या कर सकते हो, So है ना? data processing. देखो ना, जैसे जब हम स्टूडेंट थे तो हमें लगता था किसी तरह फिल्म चलानी आ जाए, है ना, व्हेन वी वर बीटेक स्टूडेंट्स तो हमें लगता था कंप्यूटर पे गाना चलाना आ जाए किसी तरह, हमारे लिए वही बड़ी बड़ी बात थी, है ना? क्यों? हमारे छोटी बात है। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कर क्या क्या सकते हैं कंप्यूटर से, हमें तो तब यही लगता था कि फिल्म फिल्म चलानी आ गई बहुत है, आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ अब ना, कि आपको क्या लगता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर से? सर डिजाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं सर, पेंटिंग वगैरह भी। आजकल तो सर सब कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर में। सर बिजनेस हो सकता है, सर किसी तरीके की ट्रेडिंग सीखना, सब कुछ सर हो सकता है कंप्यूटर में। ट्रेड और सर पेंटिंग। स्टडी। एजुकेशन वी आर टेकिंग नाउअडेज, यस सर। यस सर। और पूरा बिल्डिंग का वो फ्रेमवर्क बना Can do सकते हैं कंप्यूटर पे। फ्रेमवर्क, और पेंटिंग भी कर सकते हैं। पेंट कर सकते हैं, ओके, और वो तो डिजाइन। So data management. डाटा मैनेजमेंट, ओके, है ना, तो ये काम करते हैं बेसिकली, ठीक है? ये क्या है, कस्टमर के लिए है, कस्टमर जैसे कोई भी कस्टमर है ना जिसने सामान खरीदना है, मान लो आपने पढ़ाई करनी है, बिजनेस करना है, ओके, यू हैव टू डिजाइन, वीडियो देखनी है, फाइल बनानी है, पेंट करना है, कुछ डेटा मैनेज करना है, तो ये कस्टमर के काम है बेसिकली। इंजीनियर से पूछें कि कंप्यूटर का क्या काम है, तो वो क्या बताएगा, या इंजीनियर का, एक कंप्यूटर इंजीनियर का क्या काम होता होगा? सर वो सारी चीज डिजाइन करना जो मतलब जो कस्टमर चाहता है। ओके, चलो मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या मतलब है? Problem solver. तो प्रॉब्लम सॉल्वर लिख देते हैं इसको, इसका नाम प्रॉब्लम सॉल्वर क्यों नहीं रखा हमने? Because it do calculation. सर इट्स तो कैलकुलेटर रख देते, तो कैलकुलेटर रख देते हैं ना नाम,
हाँ जी, कंप्यूटर क्यों रखा नाम? सर कंप्यूटर तो एब्रिविएशन है ना सर, क्या? मतलब इसका पूरा मतलब एब्रिविएशन है सर, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन फॉर सर आई थिंक टेक्निकल ऐसा है। रिसर्च कुछ ऐसे के लिए। सर ये ये कहाँ पढ़े? सर ये तो हमने बचपन में पढ़ी थी। कंप्यूटिंग मतलब सॉल्विंग, मतलब कंप्यूटिंग मतलब सॉल्विंग या कैलकुलेटिंग होता है, उसके बेसिस पे नाम पड़ा है इसका। मे बी वो भी हो सकता है। चलो चेक करते हैं आप। फुल फॉर्म। लिखा है कंप्यूटर इज a digital electronics machine that can be programmed to carry out sequences of arithmetic or लॉजिकल logic. कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। मीनिंग देखते हैं इसके, है ना? ये तो चलो डेफिनेशन है। आई एम टॉकिंग अबाउट संगणक मीनिंग। that can store, find and any information collect। तो शायद इस फुल फॉर्म से पता चल जाए। जैसे फुल फॉर्म नहीं होती है बेटा इसके, है ना? ये तो लोगों ने याद रखने के लिए बना लिए, ठीक है? यस सर। कि थोड़ा आपको अच्छा लगे कि हाँ दिस इज फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, बेसिकली विकिपीडिया में शायद। नहीं नहीं, वो विकिपीडिया वुडिया नहीं होता। क्या है ना, देखो जब भी आप पढ़ाई करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? उसके बारे में जानना कि हम कर क्यों रहे हैं या क्या उसका यूज है। कोई नाम पड़ता है। व्हाट्स योर नेम? आप आपका नाम क्या है? सरोज। क्या नाम है? सरोज। सरोज। ओके, सो आपका नाम आपके पेरेंट्स ने रखा होगा, एम आई राइट? यस सर, ऑब्वियस। नहीं, जरूरी नहीं है पेरेंट्स ही रखे नाम। अच्छा, 90% केस में ऐसा ही होता है। हाँ वही है। तो ऐसा है कोई जिसने खुद रखा है अपना नाम? नो सर। नहीं, ये तो तुम अपनी बात करो ना। एनीबॉडी इन द क्लास जिसने खुद रखा हो अपना नाम? कोई सर भी मैंने नहीं है? रखा है। सर आपने मैंने रखा है? रखा है। हाँ ओके, सर। क्या नाम है सर मैंने आपका? 9th में चेंज किया था नाम, हम्म, इसलिए। क्या नाम रखा है? सर प्रियदर्शन। प्रियदर्शन। ओके, तो देख लो भाई सरोज, अब तो तुम्हारी क्लास में मिल गया, बाहर तो जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 10%। 10% कैसे कैलकुलेट की तुमने? ये तो बड़ी कम है, 75 नहीं में से मतलब एक। जेन्युइन। ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है? यू हैव यस टू सर। बी एक्यूरेट, यस। है ना? पहले तुम 0% ही बोल रहे थे कि कोई भी नहीं है, फिर 10% पे आ गए, अब 75 में से एक हो गया, तो कितनी हुई परसेंटेज? बहुत कम हो जाएगा। हाँ, तो 1-2% हुई मुश्किल से, है ना? यस सर। तो जब भी आपने कोई बात करनी है ना, देखो उसको, बिकॉज टेक्निकली इट शुड बी करेक्ट, है ना? यस मान लो सर। कल को तुम वो बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तुम बोलो यार 1% किडनी खराब है कि 10%, कितना हिस्सा काटूं इसका? तो थोड़ा भी 19-20 हो गया तो क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट। हाँ, तो मतलब whenever you are designing something, whatever you इट are शुड बी प्रिसाइज। speaking, that should be practically accurate. जब भी कोई यस बात सर। बोलनी है ना, तो उसमें एक एविडेंस जरूर चाहिए। बोलने के लिए नहीं बोलना है, मतलब बोलो जरूर बट अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, कि जो आप बोल रहे हो, हमें आदत पड़ी हुई है एक्चुअली ना, ये है कि हम वैसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है। तो कंप्यूटर मीन्स इट इज कंप्यूटिंग what? The mathematics actually, nothing else. Computer is only mathematics inside it.
we are doing the mathematical operations. They can be initially analog computer बना था, ठीक है, Yes, sir. फिर डिजिटल कंप्यूटर्स बने. With the help of them, what we are doing is we are computing actually the mathematics, nothing else. बाहर चाहे तुम गाना सुन रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अंदर उसमें नंबर्स चल रहे हैं 1 0 1 0 लाइक दिस. डिजिटल में, एनालॉग में इस तरह से चलता है. ओके, तो एनालॉग सिग्नल भी हैं, डिजिटल भी हैं, दोनों ही हैं. होगा क्या, सिर्फ मैथमेटिक्स चलेगा. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, सारे फंक्शन जो जो आप सोच सकते हैं, साइनसॉइडल, कोसाइनसॉइडल. ओके, Yes, sir. so I hope you understand now that it is computing the mathematics inside it. कैसे करेगा? With the help of Get compute mathematical operations. with कैसे करें? मैथमेटिक्स तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, Logic gates. डिवाइड भी, है ना? Logics also, sir. With the help of BJT, MOSFET, डायोड, JFET. इनकी स्विचिंग पे बिहेवियर से. ठीक है. सो इनिशियली वी स्टार्टेड विद, पहले हमने स्टार्ट किया था बीजेटी से, बट MOSFET हैज ओवरटुक ओवर इट नाउ. तो अब MOSFET से बनती हैं चीजें. और MOSFET के बाद भी FinFETs आ गए. ओके, तो अब जितने भी आपके मोबाइल्स आ रहे हैं FinFET बेस्ड आ रहे हैं. सर इसका मतलब सर FinFET. हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन अभी भी कंप्यूटर जो है MOSFET बेस्ड टेक्नोलॉजी पे ही है. ओके, इनसे हम क्या बनाते हैं? लॉजिक गेट्स, NAND, NOR करवाया था ना मैंने कल, एंड और जो भी गेट्स हैं, यूजिंग देम. XOR इनसे वगैरह फिर भी. हाँ, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, एक टर्म है, या पता नहीं अब आप पढ़ेंगे इसको, नहीं पढ़ेंगे. एम्पलीफायर तो पढ़ा है आपने, पढ़ा है ना? Yes, sir. तो एम्पलीफायर्स भी यूज होते हैं इसमें. बड़ी सारी यूनिट हैं. इनिशियली जो था, इनका रोल रहता है, इनसे आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं. NAND एंड NOR गेट जो हैं, उनसे आप क्या कर सकते हो? यू कैन मेक, दे आर विच गेट? Universal. यूनिवर्सल गेट्स. इनसे आप कुछ भी ड्राइव कर सकते हो. ओके, Sir, why they are universal gates? बिकॉज इनसे आप और भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो इसको यूज करके, XOR भी बना सकते हो, XNOR गेट भी बना सकते हो, नॉट गेट भी बना सकते हो. लेकिन NOR या NAND तो खुद ही और से बना हुआ है. नहीं नहीं, हाँ, पर इससे उल्टा बना सकते हैं ना. Yes, और सिर्फ और गेट यूज करके आप नॉर नहीं बना सकते. yes sir. उसके लिए नॉट चाहिए होगा. हाँ, जैसे ये देखो, अभी आपको दिखाता हूँ. ये क्या है? AB, ये कौन सा गेट है? NAND gate. नैंड NAND. गेट. अब इसको मैं एक और नैंड गेट लगा देता हूँ. ये क्या बन गया? दैट इज इक्वल टू AND gate. And बन गया एंड गेट. yes sir. तो अगर मैं ये बोलूं कि ये मैंने इनपुट दी, अंदर मैंने ऐसे लगा दिया अरेंजमेंट, तो ये बन गया एंड गेट. यूज क्या किया मैंने? 2 नैंड गेट यूज किए. बट तुम 2 एंड गेट यूज करके नैंड गेट नहीं बना सकते. Okay. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज Universal gates. यूनिवर्सल गेट्स. तो इनसे कोई भी एप्लीकेशन. सो आज की डेट में क्या है कि हम इन्हीं को यूज करते हैं.
फिर और एंड और नहीं यूज करते। हम जो चिप बनाएंगे ना, आईसी बनाएंगे, उस पे सिर्फ नैंड गेट्स ही होंगे, उनके कनेक्शन बना लेंगे ऐसे कि अच्छा वो अब और की जरूरत पड़ी तो इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, एक तरह से। ओके, यस सर। लाइक दिस, ऐसे स्टैकिंग रहती है सिस्टम में। ओके, तो उनको फिर आपस में जोड़ दिया, कनेक्शन बना दिए डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, है ना। So this is how the mathematics is being run. Okay, so this is how the computer is being made. But first computer was based upon amplifiers. जो एनालॉग कंप्यूटर बना था पहले, वो एम्पलीफायर के बेसिस पे बना था। जैसे कैलकुलेटर भी बना था तो एनालॉग बेसिस पे था। नाउ इट इज टोटली डिजिटल। सो हम एनालॉग से डिजिटल की ओर गए हैं। क्यों? हेलो, कैन एनीबॉडी टेल why there is transition from analog to digital, whereas 99% of the signals in the nature they are analog? Because of noise. What is noise? Interference. Unwanted signal actually. Interference और है, Unwanted है। हाँ, जो ये हमें नहीं चाहिए। unwanted, ठीक है। ओके, यस। so that is the purpose of this, इसलिए डिजिटल पे शिफ्ट कर रहे हैं। Fine. This is why we are studying about computers. तो computers की बात इसलिए करते हैं। So it all depends upon semiconductors actually. इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आप ये देखो ना, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होगी, ठीक है। सबसे पहले इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल थी, इससे पहले बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना। यस सर। उसके लिए फिर डिवाइस चाहिए, उस डिवाइस के बाद आपको मैथमेटिक्स पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स भी तो आना चाहिए, फिर कंप्यूटर बनेगा। ये तो कैलकुलेशंस व्हिच वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ these devices, because their switching is very fast as compared to our mind, है ना। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अब सब शकुंतला देवी की तरह नहीं कर सकते ना। यस सर। क्यों? राइट, यस सर। that switching is required to be done, और ये स्विचिंग ऑटोमेटिक भी है। कैसे? लेट मी शो यू। Yeah, so this is regarding the communication system. ये कम्युनिकेशन सिस्टम है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इनपुट ट्रांसड्यूसर। जैसे माइक ही है, माइक यूज करते हैं ना आप लोग, यस सर। है ना। तो वो ट्रांसड्यूसर है, वो क्या करेगा, साउंड को कैच करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। हाँ, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यस सर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। हाँ, अब इलेक्ट्रिकल में तो कन्वर्ट कर दी, जैसे मैं ही बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट भी किया होगा तो दैट इज समथिंग लाइक दिस, दैट इज इन माइक्रोफोन्स। हाँ,
बड़ा कम उसका एम्पलीट्यूड होगा। अगर उसको तो मैंने आप तक पहुंचाना है, so what I need is I एम्पलीफायर। need a transmitter, हाँ एम्पलीफायर, ठीक है, बट यस सर। उसको एज एन एम्पलीफायर भी जरूरी नहीं है भेज पाए। ओके, सो अलग अलग तरह की टेक्निक्स अपनाई गई हैं फिर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमें माइक की जरूरत पड़ी, राइट, देन वी नीड सम Yes. चैनल, है ना, किसी डिब्बे में, एक तरह से एक डिब्बे में भेजना है, कोई सामान तो बना दिया आपने, जैसे खाना बना दिया, प्रोपोगेशन हाँ प्रोपोगेशन के लिए। okay, so we are trying to send that signal because in order to reach up to a distance you need energy basically। जैसे पैदल चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे Yes, sir. ही सिग्नल को पहुंचाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हम कहाँ से देंगे? बैटरी से। एम्पलीफायर, बैटरी। एम्पलीफायर्स, हाँ बैटरी चाहिए, मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी इज बैटरी। और उसकी फेथफुल एम्पलीफिकेशन के लिए व्हाट यू नीड इज you need some environment, transmitters, receivers, okay। और फिर जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पहुंच जाएगा तो अगेन फिर से आपने जैसे विद द हेल्प ऑफ स्पीकर, आपको मान लो गाना ही है, जैसे रेडियो है, रेडियो से गाना आता है ना, या जो आप बोल रहे हैं वो सिग्नल आना चाहिए अक्रॉस दिस। ओके, सो अगेन साउंड में कि साउंड से चला था और आउटपुट भी साउंड में आ रहा है। साउंड में है, वही सेम सिग्नल। अब पता चले मैं यहाँ कुछ और बोल रहा हूँ, आपके पास कुछ और ही पहुंच रहा है, so that is acceptable? No, sir. है ना? No, sir. So what you need is you need that faithful amplification from here। ये जो amplification है कि ये सिग्नल चला मेरा, तो as it is यही मिलना चाहिए। हाँ यही मिलना चाहिए, जो इनपुट है वही उसमें आउटपुट है एक तरह से, ठीक है। यस सर। एज इट इज यही लाना है हमने। बीच में प्रोसेसिंग है बेसिकली, बीच में ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, तो अलग अलग टेक्निक अपनाई। अब इस सिग्नल को क्या कर सकते हो आप? दो तीन चीजें कर सकते हो। इसका एम्पलीट्यूड बदल सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो, बदल सकते हो, यस सर। है ना, कि यहां से चेंज कर दिया कि जैसे मान लो अब देर आर सर्टेन टेक्निक्स इफ यू हैव सीन कि 1 2 1 2 1 2, अगर ये 1 है तो अगला डिजिट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सो एक सीक्वेंस बनाया हमने, है ना, तो कोडिंग टेक्निक्स यूज होती हैं फिर डिजिटल में। और यहाँ पे एनालॉग में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और एंड दिस एंगल वी कैन चेंज। तो इसको इस हिसाब से चेंज करेंगे तो वो हमें पता हो बस, है ना। तो जैसे हमीरपुर एफएम इज दैट इज 101.8 मेगाहर्ट्ज, राइट। तो हमें पता है इस पे ट्यून करने से वी कैन कैच दिस एफएम हमीरपुर, ये फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। तो इस तरह की टेक्निक्स यूज की गई हैं ओवर द इयर्स। So the thing is, whatever signal is with us, we are transferring the signal from one point to the another. And signal means that is information. Signal क्या है? Information है, यस सर। ठीक है। And what is our highest priority is कि वो with highest security आज की डेट में कहीं और पहुंचे, वो लीक ना हो। यही चाहते हैं ना कि अब जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो किसी और को पता ना चले। आज की डेट में आप उस पे फिंगर से भी लॉक लगाते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं, है ना, फाइल पे पासवर्ड लगा दोगे। तो वी नीड दिस, हाँ, द सिस्टम्स टू बी वेरी वेरी सिक्योर।
ओके, सो अभी है आपकी क्लास कोई? मैथमेटिक्स की क्लास ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।